Morning students, myself Sandeep sir, and we are going to start our new chapter, that is chapter 1, the story of village Palampur of economics part. And in this chapter we are going to discuss about the introduction. So first of all, before going to discuss about the introduction, we must know that what type of questions may be arise from this lesson. That is, first we will see what type of questions are going to be arise. First one is introduction. Second one, factors of production. Factors of production. Third one, green revolution. Green revolution. Fourth one, farming and non-farming activities. So these are some points where the questions arises, most of them. ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकता है. मे बी क्वेश्चन आस्क दैट गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द विलेज पालमपुर, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट. So you have to, it can be asked introduction, but the main thing is factors of production. We will discuss later on. After that, green revolution, and fourth one is farming and non-farming activities. So these are the 4 points, student, we have to discuss in this lesson. Many things are there in which we have to discuss, but most of them the topics are this much. Okay, so 4 topics we have to give more focus on that. So we can see first introduction. इस पूरे चैप्टर में जो मैंने पॉइंट्स अभी लिखे थे 4 पॉइंट्स, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है. So first is introduction. So let us start. When it is going to be asked to you that introduce about the village Palampur, then what will you write? First point, it is a hypothetical village. I have already written it. What is the meaning of hypothetical? पहली बार आपको ये ध्यान देना है कि ये एक ऐसा गांव है जो hypothetical है, और hypothetical का मतलब होता है imaginary, और imaginary का मतलब होता है काल्पनिक गांव. तो हमको ये समझ में आता है कि ये गांव कैसा है, काल्पनिक है, मींस hypothetical village. Second point, it consists of 450 families. 450 families in which upper caste and lower caste people belongs. ये एक ऐसा गांव है जिसमें टोटल कितनी फैमिलीज रह रही हैं, 450 फैमिलीज रह रही हैं. इन 450 फैमिलीज में आपके अपर कास्ट के लोग भी हैं और लोअर कास्ट के भी लोग हैं. यू नो ऑलरेडी अबाउट द कास्ट, मींस कास्ट मतलब जाति. तो अपर कास्ट के भी लोग हैं और लोअर कास्ट के भी लोग हैं, और टोटल इन दोनों लोगों को मिला के आपकी टोटल फैमिलीज कितनी आ रही हैं, 450 फैमिलीज. ओके, आई थिंक इन बोथ द पॉइंट्स देयर इज नो डाउट. सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. Third point, it is we are going to introduce this village. Okay, so we have to remember while introducing, you have to say what type of village is there, how many families are belonging there, what type of people are going to be engaged is there, what is their occupation, like that. Okay, after that, upper caste people are less in comparison of lower caste people. So this is the third point. Upper caste people are less in comparison of lower caste people. It means what? इसका मतलब ये हुआ कि upper caste की जो संख्या है वो lower caste की संख्या से क्या है, कम है.
अपर कास्ट पीपल आर लेस मतलब कम इन कंपैरिजन ऑफ किसकी तुलना में लोअर कास्ट पीपल। सो अपर कास्ट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, अपर कास्ट मोर लेस एंड लोअर कास्ट आर मोर। अब इससे जो है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वॉट एवर द कंफ्यूजन इज देयर। अपर कास्ट पीपल उनकी संख्या क्या है, कम है, और लोअर कास्ट के पीपल क्या है, संख्या उनकी अधिक है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट ऑफ द पीपल are engaged in farming. Students, you have to remember this point. This is the you can say while asking maybe it can be asked what is the main occupation of the village Parampuर people. So that thing you have to remember it. इसको आपको याद करके रखना है कि इसमें से ज्यादा जो लोग हैं वो जो है किसमें इंगेज है, फार्मिंग में इंगेज है। ओके, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग है। मतलब कि लोग जो है खेतों में अपने आप को क्या कर रहे हैं, ज्यादातर बेस्ट करके रख रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज द अपर कास्ट पीपल हैव more land in comparison of lower caste people। ये आपका आ जाता है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। अभी और कुछ पॉइंट्स आपको इंक्लूड कर सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, जस्ट सी, बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इट इज ए हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक गांव है। सेकंड पॉइंट, उसमें कितने परिवार हैं, 450 फैमिलीज हैं, जिसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट के पीपल आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका ये कहता है कि अपर कास्ट के पीपल की जो संख्या है वो लोअर कास्ट पीपल से क्या है, कम है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ज्यादातर लोग जो है किसमें इंगेज हैं, फार्मिंग में इंगेज हैं। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास जमीन अधिक है इन कंपैरिजन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। थैंक्स एवरीवन।